أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے آنسوؤں کو روک نہیں پاتی، جو دل کو چھو جاتی ہے؟ یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں اللہ کی رحمت کتنی قریب ہے ہم سب کے۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اسلامی ویڈیو جہاں ہر واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی پیغمبر کو ایسے مخلص اور جانثار ساتھی میسر نہ آ سکے جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ کہیں ان کے ایمان کی گواہی دی گئی جیسا کہ فرمایا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ کہیں ان کی سچائی بیان کی گئی جیسا کہ فرمایا، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی اور کہیں ان کو امت کے بہترین افراد قرار دیا گیا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے اپنی احادیث میں بھی ان مقدس ہستیوں کی شان اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کے بہترین اشخاص وہ ہیں جن کے درمیان میری بعثت ہوئی، یعنی صحابہ کرام، جو ان کے بعد آئیں تابعین، پھر جو ان کے بعد آئیں تبع تابعین۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد یعنی مٹھی غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مٹھی کے برابر۔ ماشاءاللہ، یہ شان ہے ہمارے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام ہی کے ذریعے یہ دین، یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن کریم کی اولیں محافظ بھی صحابہ کرام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں ایسے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں کہ صحابہ کرام جیسی مقدس پاک ہستیاں بھی ان کی زبان درازی سے محفوظ نہیں رہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں صحابہ کرام کا بغض داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل کے دل میں صحابہ کرام کا احترام اور اعتبار ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام اور ان کی عظمت کو منبر و محراب سے خوب بیان کیا جائے، تاکہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے والا ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی عظمت، شان اور اعلی ختم نہ کر سکے۔ ماشاءاللہ، آپ دین سے پیار کرنے والے ہیں، مبارک ہو آپ کو بہت بہت ماشاءاللہ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک اور خوش نصیب صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ جب اسلام لائے تو نبی پاک نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کی پیدائش عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی کہ 10 سال بعد ہوئی۔ آپ نے ابتدائی دور میں اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب حضرت رسول اللہ نے دار ارقم میں ابھی پناہ نہیں لی تھی۔ آپ ان 8 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی سابقین اولین میں سے ہیں۔ نیز آپ ان 5 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر ہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ نیز آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے بھی ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق نے شوری کا منبر بنایا کہ یہ خلافت کے اہل ہیں، لہٰذا مشورہ کے بعد ان میں سے کسی ایک کو چن لیا جائے۔ لہٰذا آپ 5 میں بھی تھے، 6 میں بھی تھے اور 8 میں بھی تھے اور 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ان کے فضائل میں جو سب سے بہترین فضیلت ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ان کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ عمرو بن وہیب یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ تھے
कि किसी ने उनसे पूछा, हजरत अबू बकर सदीक ही के अलावा इस उम्मत में कोई और भी ऐसा शख्स हुआ है जिसकी इमामत में नबी करीम ने नमाज पढ़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर तफसील बताते हुए फरमाया, एक दफा हम नबी करीम के साथ किसी सफर में थे। फजर के वक्त नबी करीम ने मेरे खीमे का दरवाजा बजाया। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहते हैं। चनांचा में नबी पाक अलिया इस्लाम के साथ निकल पड़ा। हम चलते चलते लोगों से दूर चले गए। नबी करीम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरी नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता था। थोड़ी देर के बाद नबी करीम वापस तशरीफ लाए और फरमाया, मगीरा, तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। और ये कहकर मैं वो मुश्कीज़ा लाने चला गया जो कजावे के पुछले हुस्से में लड़का हुआ था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धुए, फिर चेहरा धोया। उसके बाद नबी पाक ने अपने बाजुओं से आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जुबा जीब तन फरमा रखा था उसकी आस्तीनें तंग थीं, इसलिए वो ऊपर न हो सके। चुनांचे रसूलुल्लाह ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिकदार सिर पर मसह किया, मौजों पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुंचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़कर एक रकात पढ़ा चुके थे और दूसरी रकात में थे। मैं उन्हें बताने के लिए जाने लगा तो नबी करीम ने मुझे रोक दिया और हमने जो रकात पाई वो तो पढ़ ली और जो रह गई थी उसे सलाम फिरने के बाद अदा किया। यूं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज की एक रकात की इमामत करवाने का शरफ नसीब हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शख्सियत की एक खास खूबी ये है कि अगरचे अल्लाह ने उनको साहब माल और साहब सरवत बनाया था, मगर उसके बावजूद उनके अंदर इल्म भी था, खशियत भी थी और वो बहादुर भी थे। जब किसी बंदे के पास माल आता है तो उसके साथ कुछ वबाल भी आता है, और कम से कम वबाल ये है कि बंदे का मरने को दिल नहीं चाहता। जाहिर है कि जिस शख्स की हर जरूरत दुनिया में पूरी हो रही हो, उसकी मर्जी से उसका हर काम हो रहा हो, तो वो क्यों मरेगा? वो तो चाहेगा कि मैं हमेशा जिंदा रहूं और मजे करूं। दौलत है, बहारें हैं, रोटी है, बोटी है, तो ऐसे बंदे को मौत से डर लगता है। मगर ये वो सहाबी थे कि इतना माल होने के बावजूद भी मौत से नहीं डरते थे और आपने इस्लाम पर बेहिसाब माल खर्च किया। माल व दौलत की मिकदार का ये आलम था कि उनकी वफात के बाद उनकी विरासत के सोने को लकड़ी काटने वाले कल्हाड़ों से काट कर तकसीम किया गया और काटने वालों के हाथ में चाले पड़ गए। जायदाद गैर मनकूला और नकदी के अलावा 1000 ऊंट और 100 घोड़े और 3000 बिक्रियां छोड़ें। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लकड़ी काटने वाले कल्हाड़े से अगर सोने को तोड़ने की जरूरत पेश आए तो कितना सोना होगा। आपकी 4 बीवियां थीं। बीवी को विरासत का 8वां हिस्सा मिलता है। जब 8वां हिस्सा इतनी बड़ी मालियत का था तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी विरासत कितनी होगी। जंग बद्र के बदरी सहाबा के लिए हदिया आप ये ने अपनी विफात से चंद दिन पहले वसीयत की कि जितने बदरी सहाबा इस वक्त मौजूद हैं, मेरी तरफ से उनमें से हर एक को 4-4 100 दीनार हदिया पेश किया जाए। इस वक्त 100 बदरी सहाबा मौजूद थे, उनमें से हर एक को 400 दीनार हदिया पेश किया गया। क्योंकि हजरत उस्मान गनी भी बदरी सहाबा में से थे, लिहाजा उन्होंने भी अपना हिस्सा वसूल किया, 40,000 दीनार। तो ये हो गए जो उन्होंने एक ही दिन में तकसीम करवा दिए। वाकई अल्लाह पाक ने उनके माल से इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचाया। आप मुहाजिरीन ओलीन में से हैं। पहले हिब्शा और फिर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी थे जो अमीर अंसारी कहलाते थे। उनका नाम सैद बिन रबिया था। नबी पाक अलिया इस्लाम ने उनके साथ आपकी मुवाखात कायम फरमा दी कि दोनों एक लेवल के बंदे हैं, उनका आपस में भाईचारे का रिश्ता अच्छा रहेगा। हजरत साद बिन रबिया ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ,
मेरे पास जितना माल है उसमें से निस्फ मैं अपने पास रखता हूँ और दूसरा निस्फ आप ले लें। नीज मेरी 2 बीवियां हैं, उनमें से जिसके बारे में आप कहीं मैं उसे तलाक दे देता हूँ, उदरत के बाद आप निकाह कर लेना। मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल और इयाल को तुम्हारे लिए मुबारक करे। मेरे साथ इतना भला करो कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। चुनांचा अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार गए और बहुत थोड़े पैसों से काम शुरू किया। अल्लाह पाक ने उनके पैसों में इतनी बरकत दी कि थोड़े दिनों में उन्होंने जमीन खरीद ली और ज़राअत का काम शुरू कर दिया। फिर तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें ही रहमतें हो गईं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कारोबार में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रख दी थी और उनको खूब तरक्की हुई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस हाल में आए कि उन पर जर्दी का असर था। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह कर लिया है। रसूलुल्लाह ने पूछा कि उसे मेहर कितना दिया है। कहा, 1 गुठली के बराबर सोना दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वलीमा करो, चाहे एक बिक्री का ही क्यों ना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने पर उन्होंने वलीमा किया और यूं उनकी उज़दवाजी जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना करना था मगर वसाइल नहीं थे। आपने सहाबा कराम को सिदका की तरगीब दी। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरे पास 4000 दिरहम हैं, उनमें से 2000 राह खुदा में पेश करता हूँ और बकिया 2000 अपने बीवी बच्चों के लिए रखता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक तेरे अता करदा माल में बरकत अता फरमाए और बाकी मांदा माल में भी, यानी जो माल तूने दिया है उसमें भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और जो तेरे पास बीच गया है उसमें भी बरकत अता फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बदौलत अल्लाह पाक ने उनके माल में बरकत अता फरमा दी थी। 5 सहाबा कराम का एक ऐसा ग्रुप था जिनका महबूब मुशगला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में वक्त गुजारना, इस्लाम की खिदमत करना और आपसे दीन सीखना था। चुनांचा उनमें से कोई ना कोई सहाबी दीन सीखने के लिए मौजूद रहते थे। बकिया में से जो कोई किसी जरूरत से कहीं चले जाते तो वापस आने पर दूसरे सहाबी उनको बता देते थे कि आपके जाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये बात सिखाई। उनमें एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। इतना माल और दौलत होने के बावजूद ये शौक होना कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहूं और आपसे दीन सीखूं, ये एक अनोखी चीज है। एक दफा नबी करीम अलैहिस्सलाम अंसार के एक बाग में तशरीफ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी साथ थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां जाकर एक सजदा किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ इंतजार करते रहे। ये सजदा इतना लंबा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को शक गुजरने लगा कि कहीं अल्लाह पाक के महबूब ने पर्दा ना फरमा लिया हो। घबरा कर करीब आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक उठाकर पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने अपनी घबराहट की वजह अर्ज की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जबरील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि क्या मैं आपको ये बशारत न दूं कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने फरमाया है, जो आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर दुरूद भेजूंगा और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलाम भेजूंगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने ये खुशखबरी अता फरमाई, इसलिए मैंने शुक्राने का लंबा सजदा किया। हजरत हारिस रजी अल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, हारिस, तुम्हें अब्दुर्रहमान इब्न औफ का पता है कि वो कहाँ हैं? मैंने कहा, ऐ अल्लाह के हबीब, मैंने उन्हें पहाड़ के दामन में इस हाल में देखा कि मुशरिकों के एक गुरुओं ने उनको घेरे में लिया हुआ था और वो अकेले इस गरवा के साथ लड़ रहे थे। मैं उन्हें मना करने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मुझे आप नजर आए तो मैं आपकी तरफ चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान अकेला नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हजरत हारिस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो सीधा अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ चल पड़ा। जब उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके सामने काफिरों की लाशें पड़ी थी। मैंने पूछा, अब्दुर्रहमान,
उन सबको आपने कत्ल किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा करके फरमाया कि इनमें से 2 को तो मैंने कत्ल किया है और बाकी 5 को किसी नादिदा शख्स ने कत्ल कर दिया है। मैंने फौरन कहा, अल्लाह पाक और उसके रसूल करीम ने सच फरमाया है। आप अंदाजा लगाइए कि जिनके साथ अल्लाह पाक के फरिश्तों की मदद शामिल हाल हो वो कितनी अजीम शख्सियत होगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जब वफात होने लगे तो उन्होंने 6 आदमियों हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत साद बिन अबी वक़ास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुंतखब किया और फरमाया कि इनमें से हर बंदा मुसलमानों का खलीफा बनने के लायक है। अब ये कि आपस में मशूरे से किसी एक को चुन लें और ताकीद की कि 3 दिन के अंदर इंतखाब का फैसला होना चाहिए। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की तजहीज और तकफीन के बाद 2 दिन तक उस पर बहस होती रही, लेकिन कोई फैसला ना हुआ। आखिर तीसरे दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वसीयत के मुताबिक खिलाफत 6 आदमियों में दायर है, लेकिन उसको 3 शख्सों तक महदूद कर देना चाहिए और जो अपने ख्याल में जिसको मुस्तहिक समझता हो उसका नाम ले। हजरत जुबैर ने हजरत अली की निस्बत राय दी, हजरत साद ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजिया अल्लाह अन्हु का नाम लिया, जबकि हजरत तलहा ने हजरत उस्मान रजिया अल्लाह अन्हु को पेश किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैं अपने हक से बाज आता हूँ, इसलिए अब ये मामला सिर्फ 2 आदमियों में मुनहसर है और इन दोनों में से जो किताबुल्लाह, संत रसूलुल्लाह और संत शेखीन की पाबंदी का अहद करेगा उसके हाथ पर बियत की जाएगी। उसके बाद अलहिदा हजरत अली और हजरत उस्मान से कहा कि आप दोनों उसका फैसला मेरे हाथ में दे दें। उस पर इन दोनों की रजामंदी लेने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और तमाम सहाबा किराम मस्जिद में जमा हुए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक मुख्तसर लेकिन अहम तकरीर के बाद हजरत उस्मान के हाथ पर बियत की। उसके बाद हजरत अली ने बियत के लिए हाथ बढ़ाया। हजरत अली का बियत करना था कि तमाम हाजिरीन बियत के लिए टूट पड़े। एक मर्तबा नबी पाक ने हजरत सईदा आयशा सदीका से फरमाया, आयशा, मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, यानी कफालत की जिम्मेदारी कौन लेगा। बाद में किसी मौका पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक बाग उम्महातुल मोमिनीन को ऐसा माल बतूर हदिया दिया था जो 40,000 में फरोख्त हुआ। हजरत अबू सलमा भी कहते हैं कि हजरत आयशा ने यूं दुआ दी कि अल्लाह पाक तेरे बाप यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नत के चश्मे से सैराब करे। कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इज़वाज मुतहरात के लिए एक बाग की वसीयत की जो 4 लाख में फरोख्त किया। अल्लाह पाक ने माल तो दिया था, मगर इस माल का उन्होंने कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि उम्महातुल मोमिनीन के सिरों से माश की फिक्र ही हटा दी। एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक दफा अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर गया। इस दिन उनका रोजा था। जब उनके सामने अफ्तारी का खाना लाया गया तो कहने लगे कि मुसाब बिन अमीर ही मुझसे अफजल थे। जब वो फौत हुए तो उनको कफन देने के लिए एक ही चादर थी और वो भी छोटी। अगर सर ढापनते थे तो पांव नंगे रह जाते थे और अगर पांव ढापनते थे तो सर निगाह हो जाता था। और हमजा ये भी मुझसे अफजल थे, उनको भी एक ही चादर में कफन दिया गया। फिर हम पर दुनिया वसिया कर दी गई और हमें खौफ हुआ कि हमारी नेकियां हमें जल्द दी गई। फिर रोने लगे, यहाँ तक कि खाना छोड़ दिया। देखें पूरा दिन रोजे से रहे, मगर इफ्तार के वक्त अच्छे खाने को देखकर अल्लाह पाक का डर पैदा हो गया और उन्होंने रोना शुरू कर दिया।